Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant and here I am with another session for the next exam, that is retail banking, optional subject. So those who have cleared the ABM and BFM paper, retail banking will be very important as well, right? So it's not that much difficult in comparison to the previous two papers, but we need to focus, we need to make sure that in one go we can able to clear the exam, right? So that's why we'll continue in this particular session a series, that is MCQ sessions for the next retail exam. So we'll try to cover maximum MCQ questions. So in this particular topic we will start from the unit 1 of the module A and we will proceed further as well, right? So your respond as well and share with your friends those who are preparing for the exams. So let's start the session for today. So here you can see this is the module A, that is retail banking, and one second, that is the retail banking and introduction part, and every module is very important, right? 2 to 3 case study will come, that is educational loan related one case study definitely come, one credit card related also come. So these theory questions are very important because this retail is like something theoretical in nature, and if some case study will come, it's a combination of small MCQ questions. So that will be something like one additional one, as I have already mentioned for the ABM and BFM. If case study is coming, then that's one additional benefits for us to analyze the question, right? So we'll practice the MCQ, and if any type of case study will come, that will be the important main question will be like MCQ 1, right? So let's practice this, and here we'll complete the one by one, right? So here you can see, one second. So here is the first question, that is what is retail banking? So normally what do you mean by the retail banking? First option, banking targeted at corporates. Banking focused towards weaker class segments. Banking deals with individuals and lends them money. Banking deals with wholesalers for deposit sources. So wholesaler ये सब ऑप्शन में यहाँ पर आपका मास हो जाता है, ठीक है, टारगेटेड एट कॉर्पोरेट्स, ठीक है. सो रिटेल बैंकिंग, दिस रिटेल वर्ड इज डील्स विद द इंडिविजुअल्स, ठीक है, lends them money as well. So here is the correct answer. One is banking deals with individual customers, and how we in retail banking, what we do in general, we lend them money in individuals, right? So option number C is the correct one. So next one is characteristics of retail banking. What are the characteristics of retail banking? You can see targeted at individual customers and mass मार्केट सेगमेंट्स, ठीक है. सो ये वाला भी करेक्ट आंसर है, ठीक है. सो ऑफर various liability assets and service products to the individual. See, we offer liability assets and various product to the individual as well, right? So both A and C. डिलीवरी मॉडल्स, ATMs, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग्स. सो यहाँ पर आपको जो है डिलीवरी मॉडल, ATM एंड मोबाइल बैंकिंग भी हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेनली टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स, राइट. सो यहाँ पर जो हो जाता है, यू कैन सी लायबिलिटी एसेट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा बैंक के लिए. लायबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? दैट इज डिपोजिट प्रोडक्ट्स, ठीक है. एंड एसेट क्या है? दैट इज ऑल द लोन प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो हियर ऑल द थ्री आर द करेक्ट वन. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो तीनों है आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग. सो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग. सो रिटेल बैंकिंग का एडवांटेज क्या होता है? एंड देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इसको याद रखिए, बिकॉज फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ ईजी क्वेश्चंस यू विल डेफिनेटली गेट 1 to 2 marks, राइट. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग? स्प्रेड रिस्क across customer loyalty and attractive interest pair. Spread of credit risk to diversified customers and lesser volatility in demand and credit cycle. Large number of customers with selection possibility by scoring systems. And both A and C, both D and B, ठीक है. both A and C, that is both D and B
डी एंड बी, मतलब डी एंड बी देखिए, डी एंड बी, डी में क्या है, ए एंड सी है एंड बी भी है, दैट मीन्स ऑल थ्री। सो यहाँ पर देखते हैं और स्प्रेड अक्रॉस कस्टमर्स, दैट मीन्स यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में एक सिंपल कंसेप्ट होता है, ठीक है। हम मास मतलब एक को ना दे के हम क्या करते हैं ना, अपना जो लोन प्रोडक्ट का स्मॉल इंडिविजुअल कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो कस्टमर को आप अगर थोड़ा सा भी अच्छा सर्विस देंगे देन दे आर वेरी लॉयल टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, राइट। सो यहाँ पर रिस्क कैसे डाइवर्सिफाई होता है, अगर हम एक बिग लोन दे देते हैं, यहाँ पर हम एक 100 करोड़ का लोन दे दिए एक ही पर्सन को, अगर वहाँ पर कुछ डिफॉल्ट हुआ देन हमारा जो लॉस हो जाएगा इट्स लाइक 100 करोड़। पर अगर हम 100 करोड़ को 1 करोड़ करके 100% को डिवाइड करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारा अगर एक लॉस होता है देन एक पर्सन अगर डिफॉल्ट करता है देन हमारा 1 करोड़ का लॉस होगा, नॉट 100 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक होता है, देखिए हम उसको जो देते हैं एक स्कोरिंग सिस्टम, उनका जैसे हम सिबिल चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो वी ऑल्सो चेक द स्कोरिंग सिस्टम एंड लेसर वोलेटिलिटी इन डिमांड एंड क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है दैट ऑल्सो रिड्यूस्ड इन नेचर, राइट। सो इसका जो आंसर रहेगा, दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग, दैट इज ई, all the three. So we'll see the next one, match the problems in retail banking. So retail banking में normally क्या क्या problems होता है, मैनेजिंग, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड रैपिड इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, ठीक है, एंड हायर what is that here, cost of maintaining lower value transactions higher, and next हो जाता है higher delinquencies is unsecured retail loans and credit card receivables, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स क्या होता है, अगर हम देख लेते हैं, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हुआ है शायद, ठीक है। मैनेजिंग, यहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक रैपिड रिवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज, हम इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वी आर डीलिंग विथ ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। सो वहाँ पर जो नीड के अकॉर्डिंगली जो हमारा सर्विस है वी नीड टू अपग्रेड इट एंड वी नीड टू समथिंग लाइक फोकस विथ रेस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल नीड, उसके अनुसार हमारा जो है चेंजेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, व्हेन वी आर डीलिंग विथ इंडिविजुअल कस्टमर्स देन द ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी समथिंग लाइक लो, राइट। जैसे कि हम अभी देखे हैं, ठीक है, कोई ऐसे 5,000 10,000 का ट्रांजेक्शन भी करता है, ठीक है। सो वहाँ पर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए हमारा जो मेंटेनेंस, क्योंकि आप छोटा करो ट्रांजेक्शन या स्मॉल करो ट्रांजेक्शन या बड़ा वाला करो ट्रांजेक्शन, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज सेम, राइट। सो यहाँ पर है हायर डेलिक्वेंसीज इन ऑन सिक्योर्ड रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। सो हायर डेलिक्वेंसीज ऑन सिक्योर्ड रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, जब हम क्रेडिट कार्ड देते हैं तो वहाँ पर जो रिटेल कस्टमर्स है वहाँ पर अगर मतलब उनका अगर कुछ इशू हो जाता है देन वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी भी रह जाता है कि रिटेल लोन के केस में अगर अनसिक्योर्ड रहता है एंड अदर पार्ट्स जैसे इंडिविजुअल कस्टमर का अगर कुछ इशू हो जाता है देन वहाँ पर थोड़ा जो रिकवरी में इशू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हायर चांसेस हो ही जाता है। सो ऑल द three are the problems in case of retail banking, that is all of the above, and this all of the above is the option number D है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सो विल सी द नेक्स्ट वन, ग्रोइंग अर्बन रीजन्स फॉर रिटेल बैंकिंग इन इंडिया आर। सो इन जो इंडिया में अभी रिटेल बैंकिंग चल ही रहा है उसके लिए क्या क्या रीजन्स है। फर्स्ट है ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, हाई डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज इन मास एफ्लुएंट स्पेस एंड एक्सप्लोजन ऑफ सर्विस इकोनॉमी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी है फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स seriously looking at the bottom of customers along with credit and debit card receivables. Despite credit and deposit growth, banking access remains limited to few sections of the population. D है both B and C and both A and B, ठीक है।
सो यहाँ पर जो रीजन्स ऑफ रिटेल बैंकिंग अभी जो इंडिया में चल रहा है उसका जो मेन रीजन्स है, यहाँ पर जो है फॉरेन बैंक्स जो है एंड प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अभी ग्राउंड लेवल में भी जा रहे हैं, ठीक है, विद देयर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रिसीवेबल्स। सो अभी हमारा जो रिटेल बैंकिंग का जो है इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डिस्पाइट क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ बैंकिंग एसेस रिमेन लिमिटेड टू फ्यूअर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। सो इतना सब ग्रोथ हो गया है, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट ग्रोथ हो गया है, पर जो इंडिविजुअल कस्टमर है उनको जो है उनको बैंकिंग फैसिलिटी अभी भी फुल्ली नहीं मिल पाया है। सो ये वी कैन से दिस इज लिमिटेड इन नेचर। सो ये दोनों पर्पस के लिए नाउ वी आर प्रमोटिंग द रिटेल बैंकिंग इन एन अग्रेसिव वे। सो हियर द ऑप्शंस फॉर द इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। So which is relevant to banks balance sheet? ABSA, NASA, CASA, NBFC. So बैंक का बैलेंस शीट के साथ कौन सा वाला जो है which is relevant? So in case of bank balance sheet इट्स डिफरेंट, राइट। वी कैन सी बैंक बैलेंस शीट के केस में जो होता है हमारा क्या होता है एसेट एंड लाइबिलिटी। सो एसेट क्या होता है बैंक के लिए, देयर लोन, जितना भी लोन प्रोडक्ट रहता है, जितना भी क्रेडिट प्रोडक्ट रहता है, दैट इज ऑल आर एसेट फॉर द बैंक। जबकि जो भी लोन है वो कस्टमर के लिए क्या है, ये जो कस्टमर एक खड़ा है, ठीक है, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। एंड जो एसेट हो गया एंड उसके बाद एक लाइबिलिटी है, तो बैंक ये है बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या है, जितना भी डिपॉजिट प्रोडक्ट है। डिपॉजिट प्रोडक्ट मतलब व्हेनेवर कस्टमर डिमांड्स बैंक नीड टू पे इट बैक, ठीक है, व्हिच वी ओज टू द कस्टमर। सो यहाँ पर लाइबिलिटी हो गया, जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तभी हमें कस्टमर को रिटर्न करना ही होगा, ठीक है। सो जबकि डिपॉजिट प्रोडक्ट बैंक के लिए हो जाता है लाइबिलिटी, उस केस में हमारा कस्टमर के लिए डिपॉजिट क्या है, दैट इज एसेट, ठीक है। सो ये थोड़ा अपोजिट है, जो कस्टमर के लिए एसेट है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, एंड जो कस्टमर के लिए लाइबिलिटी है वो बैंक के लिए एसेट है। ये कैसे एसेट है, बिकॉज ये जो लोन प्रोडक्ट से बैंक को क्या होता है, इनकम जनरेट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम मिलता है। सो यहाँ पर जो कासा है ये एक टाइप का डिपॉजिट प्रोडक्ट है। सो ये बैंक का बैलेंस शीट के साथ कौन सा वाला पार्ट में लिंक होता है, दैट इज द लाइबिलिटी प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द रिटेल, एक सेकेंड इसको ये कर देते हैं, ओके। डिफाइन द रिटेल एसेट्स अंडर द रिटेल बैंकिंग, ठीक है। रिटेल एसेट क्या क्या है, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्रेडिट कार्ड्स रिसीवेबल्स, ठीक है, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये ECS लोन्स, EFT लोन्स, कासा लोन्स, बोथ A and C, बोथ A and B। सो जितना भी रिटेल एसेट है अंडर रिटेल बैंकिंग, ठीक है, सो हाउसिंग लोन, जितना भी लोन है, अभी हमें आपको बताया था कौन सा वाला लोन प्रोडक्ट जितना भी है सब हमारा बैंक के लिए एसेट हो जाएगा, रिटेल एसेट, ठीक है। सो हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ये सब आपका रिटेल एसेट में आ जाता है। ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये भी आपका इसमें आ ही जाता है। सो ऑप्शन नंबर A and B आपका जो होता है करेक्ट आंसर फॉर द रिटेल एसेट, दैट इज इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। What is the highest in number of commercial bank? Which is the highest in number of commercial bank in India? Branches, ATMs, extension counters, mobile banking, internet banking. सो ब्रांचेस, ATMs, एक्सटेंशन काउंटर, मोबाइल बैंकिंग। सो इसमें से जो हाईएस्ट नंबर है, यू कैन सी इंडिया में अभी तक टोटल जो नंबर ऑफ ATMs है बाय द शेड्यूल मतलब कमर्शियल बैंक, दैट इज 2.13 लाख सब ही है, ठीक है, अप्रॉक्स।
जबकि हमारे पास जो है जितने कमर्शियल बैंक के बाद जो है जितना ब्रांचेस है बाय ऑल द ब्रांच, ये है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक है 87,892 एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक का अभी तक ब्रांच है 34,690 एंड अदर बैंक जैसे फॉरेन बैंक हो गया, कोई अदर बैंक हो गया 308। अगर इसको हम मिला ले इट्स लाइक 8311 दैट इज 8.20 1.2, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो कंप्लीटली डबल है अभी एटीएम्स। सो विच इज द हाइस्ट इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, दैट इज द एटीएम्स। What is not a constant in retail banking? So in case of retail banking, which is not a constant? First one is managing large number of clients in absence of robust IT system. Rapid evolution of services, maintaining ATM centers with low cost, अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स क्रेडिट एंड रिसीवेबल्स अमाउंट, ठीक है। सो इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग कौन सा वाला एक कांस्टेंट नहीं है, इतना बड़ा कस्टमर बेस को हैंडल करने के लिए विदाउट ए प्रॉपर मतलब प्रॉपर आईटी सिस्टम, दिस इज वन टाइप ऑफ कांस्टेंट। रैपिड इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज, द कस्टमर्स नीड्स आर बीन चेंजिंग डे बाय डे एवरी डे, राइट। सो इसके साथ हमें इवोल्यूशन भी अपना सर्विस को करना जरूरी है। सो दिस वन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कांस्टेंट। सो नेक्स्ट वन इज अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स क्रेडिट एंड रिसीवेबल्स अमाउंट, ठीक है, ये भी वन टाइप ऑफ कांस्टेंट है। मेंटेनिंग एटीएम सेंटर्स विथ लो कॉस्ट, दिस इज नॉट वन टाइप ऑफ constant. So this is not, option number C है इसका correct answer. What is the business model for retail banking in India? Strategic business unit approach, departmental approach, integrated approach, any of the above. So in case of retail banking in India, the approach which is used, that is option number D, any one of the above. That is strategic business approach, SBU, departmental approach, integrated approach. So the approach which is used in case of retail banking of India, that is, so you can see strategic business approach कहीं कहीं कुछ कुछ एरिया वाइज हमें डिफरेंट होता है, कहाँ कहाँ पर हमें डिपार्टमेंटल अप्रोच भी यूज करना पड़ता है, समटाइम्स वी आल्सो नीड इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। So next one is, we'll cover 15 questions in this session and we'll resume in the next session. So give the names of foreign banks which entered the retail banking activities but when not able to achieve the business objective move out of the business. So कोई एक foreign bank से who has joined the retail banking but unable to sustain there, BNP Paribas, American Express, ABN AMRO, now RSB Bank, Citibank, and all A to C. So here all these foreign banks have entered the retail banking but unable to continue, unable to achieve the business objective, right? That means unable to generate profit for their business, we can say, right? So all the 4 banks. So remember these names, these are the very important. And one more important question I would like to ask you, why these banks are unable to achieve their business objective? As per me, the main important thing is, while we are dealing now also public sector banks need to upgrade their services with respect to the private sector competitors, because if we are unable to provide the service as per the need of the customer, okay, now if we talk about the recent scenario, all the customers are like technological oriented. So now we can see all the PSB starting from SBI, BOB, Canara, PNB, all the banks now focusing on their digital products, right? So we need to upgrade ourselves with respect to the need of the customer. We need to understand the approach of the customers and accordingly we need to provide them, right? So this is one of the reason, and you can also add the points what you think why these banks are unable to achieve their business objective in the comment section. Do like. So next question is, in retail banking which business model is adopted generally by public sector banks? So in case of retail banking, which business model, कौन सा वाला business model है जो कि public sector bank यूज किए हैं? So strategic business units, departmental approach, integrated approach, management by objective approach.
So the public sector bank, all the public sector banks have used the business model that is departmental approach, right? So this is very important, right? Which type of departmental approach is used by which one? That is public sector bank. एंड और एक ये जो क्वेश्चन था पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा वाला अप्रोच यूज किए थे, दैट इज डिपार्टमेंटल अप्रोच. और यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुई इज बिजनेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग इज डू अडॉप्ट बाय न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. सो जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कौन सा वाला है? दैट इज यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है सेम में, और उनका जो था मेन इंपॉर्टेंटली दैट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच. So that is the option number A is the correct one. So this is the next one. During 1990, certain foreign banks went for business model in retail banking, but after certain years, continue with their business in spite of being unprofitable, changed their focus with some strategic changes, moved out of the business. None of this. सो अभी हम जस्ट रिसेंटली इस क्वेश्चन को कवर किए थे, 4 जो कि अपना बिजनेस को रिटेल बैंकिंग बिजनेस से खुद कम्प्लीटली निकल गए थे. सो ड्यू टू देयर अनसर्टनिटी वो सस्टेन कर नहीं पाए, उनका प्रॉफिट उतना जनरेट हो नहीं पाया, इसीलिए व्हाट दे डिड दे मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस, राइट. सो दिस इज द करेक्ट वन. We'll do another question, one last question for this session. Discuss the liability products offered to retail banking customers. So कौन सा liability product है? हम asset product मतलब डिस्कस कर लिए थे. अभी मैं आपको liability product क्या होता है, that is all types of deposit products are the liability for the banks. Why? Because in case of deposits, bank needs to pay interest टू द कस्टमर्स एज वेल, राइट. एंड उसके साथ भी कभी भी कस्टमर अगर डिमांड करता है टू गेट देयर डिपोजिट्स बैक, बैंक्स हैव टू पे इट बैक, राइट. सो दिस इज लाइबिलिटी फॉर द बैंक बट एसेट फॉर द कस्टमर. जस्ट रिमेंबर दिस डिफरेंस. सो लाइबिलिटी प्रोडक्ट में कौन सा होता है? सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पर कस्टमर डिपॉजिट करता है. करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स, व्हेनेवर कस्टमर डिमांड्स वी नीड टू क्लोज दिस डिपॉजिट्स एंड गिव बैक टू द कस्टमर. हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो लोन्स, ये जो लोन प्रोडक्ट है बैंक के लिए क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है, ठीक है. सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वी कैन सी हियर ऑप्शन नंबर A and B is the correct one. सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स आर द लायबिलिटी प्रोडक्ट ऑफर्ड टू द रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स, ठीक है. सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल ए का यूनिट 1, ठीक है. सो उसके बाद हम 17 क्वेश्चन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू 40 और कुछ क्वेश्चंस होगा, ठीक है. 1 मोर सेशन में कंप्लीट करा लेंगे. सो आप लोग भी आराम से प्रिपेयर करिए, ठीक है. एंड इफ़ यू आर नॉट रेफर द स्ट्रैटेजी सेशन, मैं उसमें कम्प्लीटली अपना जो स्ट्रैटेजी है, कैसे मैं अपना जो प्रिपरेशन को विद इन 1 वीक आराम से आप 65 ईजिली ला सकते हैं, ठीक है. मैं खुद लाया हूँ, उसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फोकस कर लेना होगा, ठीक है. देन यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क इन दिस रिटेल सब्जेक्ट, राइट. सो till that time keep learning and फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल सो दैट विल हैव ए ग्रेट कम्युनिटी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग्स, राइट. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. टेक केयर, बाय बाय. And join the Telegram group as well, where we will conduct some types of quizzes for your practice. And you will get this Telegram group link in the about section or in the discussion box as well.